So yes, students, so you are back. Okay. So yes. So see here, as I told you, the pressure that are exerted by liquids is what? It's what it is called. What it is called? Liquid pressure. Yes. What do we call it? Who can tell me? I don't think so. You are learning it for the first time. Liquid pressure कह सकते हैं. In broader term, we call it fluid pressure. ठीक है? And the pressure exerted by air is called atmospheric pressure. Okay, it is called atmospheric pressure. Note down this, beta. Now, these pressures, especially the fluid pressure, means common for liquid and air. It is related with depth. ठीक है? Depth, गहराई. Last time we learned in the solid case, हमने कहा pressure area देखना है सिर्फ. Force और area, force and area. Just focus on these two things, है ना? कि एरिया बड़ा है छोटा है, then we say pressure is large or small, है ना? Similarly with the force. But here what you have to figure out, you have to see the depth, यानी गहराई. ठीक है? Now how it is related, जो depth है, if you know there is a one formula also for the pressure. Pressure is also related to the H rho G. Okay, H rho G. Okay, H rho G. So rho is what? Okay, rho is what? It is density. G is gravity. And here H doesn't mean height. Here it is depth. So in today's session, we are going to focus on this thing only. That pressure is related to height. Okay, it is related to the height. Now how it is related? So let me tell you. पहले बताओ आप में से कौन कौन हिल स्टेशन गए हुए हो? How many of you have been to any hill station? कभी गए हो किसी हिल स्टेशन? Any hill station? हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, anywhere? गया कोई? कोई भी नहीं गया अभी तक किसी हिल स्टेशन में? Yes, beta, raise your hand. It's a very simple question. It's not any rocket science that I'm going to ask you. Just simple question. कभी किसी हिल स्टेशन गए हो? Yes. 8 थे. Only 1, 2 students. सिर्फ 2 ही बच्चे गए. बाकी कोई भी नहीं गया कभी किसी हिल स्टेशन. ऐसा हो नहीं सकता. इतने शरीफ नहीं लगते आप लोग. चलो. 8th D. 8th D. कौन कौन हिल स्टेशन गया हुआ है? इस क्लास में से कोई भी नहीं गया है. ओके. And 8th B. 1 student. 2 student, 3, 4. Okay. F section. कितने बच्चे हिल स्टेशन गए हुए हैं? F section. Only 1 student, 2 student. Okay. G section. In G section. Okay. Middle row में काफी बच्चे गए हैं. That's nice. So गए तो बेटा सभी है. बस it's just a matter you don't want to raise hand. Okay. You must be thinking कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूंगी हिल स्टेशन से, है ना? So that I know. और जिसने नहीं उठाया और उसी से मैं पूछूंगी, क्योंकि आई नो यू हैव बीन टू दैट प्लेस. सो ये अब आपने अपने लिए ही मुश्किल कर दिया. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम द 8th. ठीक है. फर्स्ट बेंच बॉय. फर्स्ट बेंच बॉय टुवर्ड लेफ्ट साइड. यस. तो बेटा माय क्वेश्चन टू यू, अगर हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, सो एयर जो है वो
थिन होती है या थिक होती है? यस बेटा, थिन। थिक. सो वी कैन से इफ वी आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, and this is the mountain, okay, and we are climbing the mountain. If we say air here is, it's thick, यहाँ पर thick है. Wait a minute beta, I think it's there's some problem. Yes, so it's thick here, ठीक है, it's thick because of the gas molecules, dust particles, many things are in the air, ठीक है. As we climb, started climb, ठीक है, हम climb करना शुरू कर दे. So what we observe, we feel our breath कैसी हो जाती है, सांस कैसी होगी जैसे हम ऊपर जाएंगे, नॉर्मल रहेगी या कुछ डिफरेंट होगी? इज देयर एनी डिफरेंस? फास्ट हो जाएगी। फास्ट होगी और क्या होगी साथ में? डीप. हम ऐसे से सांस भरेंगे. वाई सो? वाई सो? एयर इज लेस। यस बेटा, एयर इज लेस। एयर तो है लेकिन एयर इज थिन. Air is thin. So you can see the difference here. Molecules difference. So in air, oxygen, suppose here we have, I'm not talking about the 21% concentration. I'm just giving you an example. Suppose यहाँ पर 10 gram है. Here it is 7 gram. And here it is 5 gram. But our body needs 10 gram. So it means वहां पर कम मिल रही है. अब उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to breathe fast and deep. Yes? So we can get enough oxygen. One more thing. Nose bleeding हो जाती है. क्यों होती है जब ऊपर जाते हैं? क्यों चक्कर आते हैं? Why we feel dizziness? What is the reason? 8D, middle row, second bench boy who's turning back. Stand up. Yes? On the left side, 8D, middle row, second bench boy. Yes. Stand up. So yes, you tell me, beta. Why we feel dizziness or we experience nose bleeding when we climb mountain? Turn on the mic from the Zoom. Beta, in the last class, everyone, I told everyone that I have big screen. I can see each and every student what they are doing. And especially when you're moving, you're talking, my screen start blinking and focusing you. Yes, tell me. क्यों जब हम ऊपर माउंटेन में चलते हैं हमें चक्कर आते हैं या नाक से खून निकलना शुरू होता है? व्हाट इज द रीजन? यू नो द रीजन और नॉट? या नो आता है। बताओ फिर बेटा. As the atmospheric pressure increases, pressure decreases. As the atmospheric pressure increases, pressure decreases. बेटा सुनो ध्यान से. ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है. प्रेशर डिक्रीज होएगा, इंक्रीज क्यों होगा? ये तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कम हो रहे हैं. एयर इज गेटिंग थिन, तो प्रेशर तो कम हो जाएगा. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गेटिंग डिक्रीज. एज इट गेटिंग डिक्रीज, तो क्या हो रहा है? उसके डिक्रीज होने से हमारे अंदर जो हमारे ब्लड का प्रेशर है वो तो उतना ही रहेगा. ठीक है, हमारे अंदर जो हमारा प्रेशर है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. अब क्या होगा? हमारे अंदर ज्यादा प्रेशर है हमारे ब्लड में, ठीक है, इट इज मूविंग इन द सेम वे, बट बाहर क्या है? कम है. तो उसके कारण क्या होगा? जो हमारे अंदर जो वेसल्स हैं, वेसल्स क्या होती हैं? जिससे खून इधर से उधर जाता है. सो यू मस्ट लर्न अबाउट दिस इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, है ना? तो अब जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी क्योंकि प्रेशर तेज है भार कम है तो वो फट जाती है. तो उसकी वजह से नोज में ब्लीडिंग होती है. और वी फील डिजीनेस बिकॉज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही जितनी उसे चाहिए. गॉट इट नाउ? इज इट क्लियर? यस बेटा. Yes, ma'am.
अब बताओ, ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? अब बताओ। कम होगा। चलो ठीक है, अब बैठो। So yes, as we move up, atmospheric pressure decreases. अब इसका मतलब डेप्थ से क्या लेना देना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? डेप्थ के साथ इंक्रीज होएगा, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेप्थ के साथ इंक्रीज और ऊपर जाने पे डिक्रीज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, इज इट क्लियर? Any doubt in this part? Please do raise hand because this is very important concept, beta. Okay, so now next is liquid. ठीक है, अब लिक्विड का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। पानी जो है, ठीक है, जो हम पानी जो चलाते हैं। अच्छा, आप सबको पता होगा आपके घर में ओवरहेड टैंक्स है। यू ऑल हैव ओवरहेड टैंक, ऊपर छत में जो वाटर टैंक है सबके घर में। यस, एवरीवन हैज ना? हाँ। लेकिन जो टैप है वो तो नीचे है ना, नीचे। और जब आप ऑन करते हो प्रेशर से आता है पानी, जैसे ऑन किया पानी छट 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 करके आने लग पड़ता है। कभी आपने सोचा ये जो ओवरहेड टैंक है ये नीचे क्यों नहीं है? वाई वी नीड टू इंस्टॉल दीज टैंक्स एट टेरेस? क्यों छत पे लगाना पड़ रहा है? नीचे क्यों नहीं रखा दिया? और नीचे अगर टैंक है तो उससे पानी ऊपर क्यों चढ़ाते हैं? व्हाट इज द नीड? नीचे से भी तो आ सकता है, इट कैन कम डायरेक्टली, बट वाई देयर इज ओवरहेड टैंक? क्यों है ऐसा? इवन अगर आप थोड़े से शहरों में देखोगे, टाउन्स में देखोगे, इन विलेजेस देयर आर बिग वाटर टैंक्स, है ना। एक गांव का एक बहुत बड़ा टैंक होता है ऊपर, है ना, जिसे हम कहते हैं पानी जो है बहुत बड़ा, एक सीमेंटेड होता है वाटर टैंक, सारे पूरे गांव का बड़ा सा, जिसमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, वो भी ऊपर जाके, इतना ऊपर जाके पानी क्यों स्टोर किया है? इतनी मेहनत करके पहले पता नहीं कितना मंजिल वो ऊपर बनाया होता है, 5 या 6 मंजिल ऊपर, फिर जाके एक टैंक बनाया होता है। सो वाई देर इज नीड टू बिल्ड लाइक दिस? नीचे क्यों नहीं बना दिया? कोई तो बताओ, गिव मी द आइडिया और सम आंसर। सोच के बताओ। यस, 8th स्टूडेंट, यस बेटा। Increase the pressure. Yes, to increase the pressure. That's nice. That's nice. क्योंकि जैसे नीचे नीचे आएगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा? अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताया। सेम चीज इज विद द लिक्विड। एज वी मूव डाउन, pressure increases. As we move up, it decreases. तो पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो कैसा आएगा? With more pressure. और more pressure से क्या होगा? हर जगह जाएगा। It can move anywhere. Is it right? सबको समझ में आया? So let's do this or understand this with an activity. ठीक है, इसको एक्टिविटी से समझते हैं। So here I have this water, और इसमें यहाँ पर हमारे पास कुछ होल्स हैं। ठीक है, एक ये बॉटल है एंड देयर इज वन मोर। यस, वन मोर बॉटल। इसमें सारे सेम हाइट पे। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। Is it visible to everyone? Yes. बेटा जिस जिसके माइक पास माइक है सबका माइक ऑन करो। एवरीवन टर्न ऑन योर माइक, ईच क्लास। Can you see? Everyone, see? ये देखो मैं मूव कर रही हूँ अभी सारे। अब see, these are closed now. बंद हो गया अपने आप। यू कैन सी वाटर इज फिल्ड, स्टिल दीज आर क्लोज्ड। आई शो यू व्हाई वाटर इज नॉट कमिंग। नाउ कैन यू सी इट इज क्लोज्ड। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, तो इस बंद करने से क्या हो गया? जो हवा का प्रेशर पानी पे पड़ रहा था कि पानी बाहर निकले, इट इज नाउ नॉट एक्सर्टिंग। अब ये पानी जो है इस पे
जो हवा है उसका प्रेशर इस बॉटल पे और पानी पे नहीं आ रहा। नाउ यू कैन सी, जैसे मैं इसको थोड़ा सा खोलूंगी, इट स्टार्ट कमिंग आउट। सी, कैन यू सी इट स्टार्ट कमिंग नाउ। नाउ अगेन आई एम क्लोजिंग इट, ये देखो फिर से बंद हो गया। इट्स जस्ट अ मैजिक बेटा। बॉटल में चारों तरफ छेद है, यू कैन सी हियर ब्लैक कलर होल्स, ठीक है, बट वाटर इज नॉट कमिंग राइट नाउ बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर अभी पानी पे नहीं लग रहा। बट एज आई ओपन इट, यू कैन सी, ये देखो वाटर इज कमिंग। एंड हियर वन मोर थिंग, जब एक ही हाइट पे छेद है, सो वाटर इज कमिंग विद द सेम प्रेशर, एक ही प्रेशर से आ रहा है, सो देयर इज नो डिफरेंस। एंड अगेन लेट मी क्लोज इट, सो ये देखो अगेन इट स्टॉप्ड। सो इट्स जस्ट अ मैजिक, it's a magic bottle, you can say. Water is not coming, but as soon as I open it, see, again it's coming out. Yes, yes. So now let us do one more activity. अब हमारे पास बॉटल है, इट्स ऑफ डिफरेंट हाइट, ठीक है, बॉटल इज नॉट सेपरेट है, होल्स आर एट डिफरेंट स्पॉट्स, यू कैन सी वन इज हेयर, सेकंड वन इज हेयर। सो लेट्स सी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, why there is a difference or why we install water tanks at height, ठीक है, so let's figure it out. तो अभी हम इसको करके देखते हैं, where are both here? तो I'll try कि इसमें भी अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला दिखा सकूं पहले। ओके, सो फर्स्ट इज अब देखो बेटा यहाँ पर, लुक हियर केयरफुली, यू कैन सी पानी जो है इट्स कमिंग आउट, बट हियर यू कैन सी कौन सा वाला ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, नीचे वाला या ऊपर वाला, विच वन इज कमिंग। ओके, थोड़ा सा मैं नीचे और करके दिखाती हूँ। सी, विच वन इज कमिंग विद द प्रेशर, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? ऊपर वाले से। ठीक, कौन सा वाला आगे तक जा रहा है बेटा, यहाँ आपको शायद से दिख रहा है, लेट मी शो यू कौन से वाले से आगे तक जा रहा है। तो नाउ यू कैन सी, आई थिंक सो नीचे वाले से आगे तक जा रहा है या इस वाले से आगे तक जा रहा है, प्रेशर किसका ज्यादा हुआ? सी इट क्लियरली, कौन से वाले से आगे तक पहुंच रहा है, पानी दूर तक किससे पहुंच रहा है, नीचे वाले से ऊपर वाले से? सी, ऊपर वाले से यहाँ है, इज जस्ट कमिंग डाउन हियर, यहाँ देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, एंड यहां से देखो इट इज गोइंग टिल हियर, it is moving more far, yes or no, yes or no? Yes. Yes, so which is having more pressure, now you can see more, यहाँ पर देखो किस पे ज्यादा प्रेशर है, नीचे वाले में ऊपर वाले में? तो वी कैन से नीचे वाले में बेटा ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इसका जो पानी था दूर तक गया, नाउ वाटर लेवल इज डिक्लाइन, थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है, पहले वाले से, सो नाउ वी आर नॉट एबल टू सी। अब आपने कई बार सिरिंज भी देखा होगा, डॉक्टर क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे फर्स्टली पुल द this thing here like this, okay, then they
इट लाइक दिस, है ना। भरने से पहले कुछ भी जो भरना होता है इसमें जो आपने जो सोल्यूशन भरना है, तो फर्स्टली दे डू इट लाइक दिस, दे पुल इट, ठीक है, then they do it like this. What is the reason? They remove air first, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो air is coming like this. It is now we fill it. And same thing we do when we have juice. स्ट्रॉ से हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ को ऐसे ही डालते हैं जूस, है ना, अपने मुंह में, और फिर मुंह से ऐसे खींचते हैं जूस को। यस, वी डू इट लाइक दिस। तो जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, जो हवा है स्ट्रॉ में वो हम उसको खींच रहे हैं, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस वजह से जो बाहर जूस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका जो प्रेशर है इट इज कमिंग टुवर्ड अर्थ, ठीक है, इस वजह से वो हमारे पास आती है। एथ डी बेटा, इज देयर समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन? मिडल रो बेटा, इफ यू डोंट वांट टू हियर और डोंट वांट टू अटेंड, जस्ट leave the class because you are disturbing other students. 8th D, middle row, especially first three boys, first three bench. If you don't want to attend class, better leave the class. I'll be more happy because I don't want other hundreds of students to get disturbed because of you. So now I hope it is clear to everyone. These experiments are, I think, helpful to you. ठीक है? So now you got what I was telling you. ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी, I think it is clear कि क्यों हम water tank ऊपर लगाते हैं. Yes? Is it clear to everyone? Raise your hand if it's clear. Yes, eighth है. Is it clear? Eighth है. Middle row, second bench girls. Is it clear? Second bench girl, eighth है. Is it clear, beta? Stand up. Left side girl, second bench, middle row, left side girl. Beta, stand up. Tell me, what is the reason? What is the reason why we install overhead water tanks at height? What is the reason? क्यों ऊपर होते हैं water tank? What is the reason? Beta, it's turned off. Red means it's off. Blue means it's on. First bench boy, beta, help her out. Your voice is not coming. Teacher, any teacher is there? Okay. Ma'am, please help her out. She is not able to turn it on. Because water comes down, pressure increases. As beta, Water comes down, pressure increases. as comes down, so pressure increase. So we can say pressure, fluid pressure is increases at moves down, as we moves down, or fluid moves down, we can say with the depth it increases. Yes. Okay, sit down, sit down. That's good. Thank you, ma'am. So that's good. So I hope this concept is clear. Atmospheric pressure and liquid pressure. Is it clear to everyone? Yes or no? Is it clear? Yes. Okay. So now with this, we are going to take some questions from your worksheet. Okay. हमारी worksheet क्योंकि पूरी नहीं हुई थी, we are left with some questions. Okay. So question is, when you suck air from a straw on earth, juice rises up into your mouth but cannot on moon. Why? अगर हम अर्थ पे बैठ के स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं तो वो ऊपर आता है, बट इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन मून इट्स नॉट कमिंग अप. व्हाट इज द रीजन? Fifth question. It's a fifth question.
So 8th A roll number, yes, 8th A roll number 26. 8th A roll number 26. Yes, ma'am. Okay. So 5th का बेटा क्या होगा? And because on moon atmosphere is not there. So if atmosphere is not there, so क्या नहीं होगा जिसकी वजह से जूस ऊपर आता है? अभी मैंने कहा इंजेक्शन दिखाते हुए आपको, सिरिंज दिखाते हुए, Air एयर pressure. एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा. So everyone note down the answer. There is no atmospheric pressure on moon to push the juice up into the straw. Everyone note down. So beta, these are the important questions that can come in your exam also. I'm giving you answers also, so note down these. Because as we are sucking through straw, जैसे हम अंदर को लेने लगते हैं, so what we are doing? We are taking air, so that makes less atmospheric pressure in the empty straw. But नीचे जूस का atmospheric pressure जो पड़ रहा है उसकी वजह से it is coming up. ठीक है? Because यहाँ पर pressure difference हो गया. Yes, 80 बेटा, still something is going on. Corner rows now. Now, sixth question. Why a mountain climber experiences nosebleed? तो ये हमने भी स्टार्टिंग में किया था. So what is the reason? कि अगर हम माउंटेन में ऊपर चलते हैं तो a person can experience nosebleed. It's not the case with everyone. कुछ जो adapted है, it doesn't affect that. Yes, बेटा. So eighth B, roll number 17. 8th B, roll number 17. Ma'am, absent. Okay, then 24 is present. Yes. Whether 24 is present? Yes, better question number 6. बेटा खुद सोच के बताओ. Because the pressure exerted by the blood. Okay, tell me as we move up in the mountain. ठीक है, जैसे हम माउंटेन में ऊपर चलते हैं. What will be the atmospheric pressure there? Less or high? As we move up. So what would be the atmospheric pressure? Simple. Yes, say.
मैं आपको अब जब हम ऊपर माउंटेन में जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा बेटा? इट विल बी हाई और लो। कैसा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लो। पक्का? Yes. अब ये भी बता दो क्यों होगा? क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? प्रेशर क्यों कम होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर क्यों कम होगा एज वी मूव अप? व्हाट इज द रीजन? इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग। हाँ, उसकी नोटबुक से देख लो, अपनी नोटबुक में किया था, बनाया माउंटेन वाला डायग्राम। जब हमारा फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट हुआ था, आई टोल्ड एवरीवन टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, क्योंकि इजी होंगे आपको रिकॉल करने में। यस, बताओ बेटा, क्या व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एयर इज थिन, air molecules are less as we move up, and because of that atmospheric pressure is less. ठीक है? अगर हवा ही हल्की पतली हो जाएगी तो प्रेशर भी उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आपकी जो बुक है, आपके जो चैप्टर्स हैं, 10 आने हैं एग्जाम में, अगर वो जो मैं घटा के 5 कर दो तो प्रेशर कम होगा या नहीं होगा आपका? कि अब तो कम पढ़ना पड़ेगा, है ना? होएगा या नहीं होगा? प्रेशर कम हो जाएगा ना? वैसे ही जो है, एयर में से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, एयर का प्रेशर कम हो गया। ठीक है? इज इट राइट? चलो बैठो, लिखो एवरीवन। एट हाई, लिखो, एट हाई ऑल्टीट्यूड atmospheric pressure is low. ठीक है, it will be low. Now coming to 7th question. ठीक है, we have 4 vessels. ठीक है, 4 है हमारे पास दे रखे। ठीक है, सो सब में लिक्विड भरा हुआ है, बट सिंपल थिंग, व्हाट you don't have to see what is the vessel, क्या डला हुआ है, no, you just see the height, depth here. ठीक है, so you have to tell, observe the vessels A, B, C, D. ठीक है, volume of water taken in each vessel is shown. Arrange them in order of decreasing pressure at the base of each vessel. Explain किसमें सबसे कम प्रेशर होगा? सो डेप्थ देखनी है, जिसकी सबसे कम डेप्थ है तो उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसमें सबसे कम होगा। सो वी कैन से डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो डी का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी हाइट, यू डोंट हैव टू सी शेप एंड साइज। प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, राइट डाउन दिस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ। ठीक है, सो मूविंग फ्रॉम डी, ठीक है, डी से हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द, I think it's B, then it's A, and the last is C, क्योंकि C की हाइट सबसे छोटी है। ठीक है, now 8th question. If the area of head is 12 centimeter into 12 centimeter, how much air in weight would you carry on your head? अगर हमारा सर का एरिया दे रखा है, ठीक है, हमारे सर का एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी हवा भर सकती है? So that is being asked. So firstly, it is in centimeter. What you need to do, you have to convert into meter. क्योंकि जो मीटर है that is the standard unit. Firstly, convert this into meter. And that you are doing since you are in class 6. ठीक है? So you have to convert small to big unit. So you have to use division.
सो कितने सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं? कौन बताएगा? एफ सेक्शन, रोल नंबर 3। 1 मीटर के बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? इन 1 मीटर there are how many centimeters? 1000. Beta, that is 1 kilometer is equal to 1000 meter. It's 100. 1 meter is equal to 100 centimeter. Everyone note down this. If you don't know this thing, then how can you convert? Sit down, beta. 1 meter is equal to 1000 centimeter. And now you have to convert centimeter into meter. So means you have to use division here. Everyone note down this thing. छोटे से बड़े के लिए यू हैव टू डिवीजन, जब बड़े से छोटे में जाते हो यूज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, यूनिटरी मेथड. ओके, नाउ क्या पूछा गया है? सेंटीमीटर इज गिवन 12 सेंटीमीटर. इफ वी कन्वर्ट इनटू मीटर वी गेट 0.12 मीटर. सो दिस इज 0.12 मीटर. And the unit of area is meter square, means you have to multiply this 0.12 into 0.12. Okay, then you will get meter square. So what you will get? 0.0144 meter square. So this is the area, final area. ये हमारे पास area आ गया. Everyone note down this thing. This type, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में. यस बेटा. मैम प्लीज एक्सप्लेन 7th क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन बेटा, 7 क्वेश्चन में 4 वेसल्स दे रखे हैं. लिक्विड इज ऑल्सो फिल्ड, बट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है, कहां से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? सो डिक्रीज किससे होगा? ऑब्वियसली वी हैव टू टेक वन विच इज हैविंग हायर प्रेशर. हायर प्रेशर किसका होगा? जिसकी हाइट ज्यादा होगी. ठीक है, ओके. आई थिंक आई रिवर्स कर दिया, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं कर दिया. लेट मी चेक. अब इसको कंप्लीट कर देते, देन वी विल गो बैक, क्योंकि अभी बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फिर वी विल गो बैक. जस्ट ऑपोजिट हुआ होगा, नथिंग एल्स उसमें. ठीक है, सो यहाँ पर आ गया एरिया इज 0.0144 मीटर स्क्वायर. ये अंडरस्टूड है सबको? कैसे आया? हाउ वी गेट दिस? यस, रेज योर हैंड इफ दिस इज क्लियर. गॉट दिस? ठीक है. सो दिस इज योर एरिया. सो नाउ व्हाट एल्स यू नीड? और क्या चाहिए तुम्हें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? नोट डाउन दिस थिंग. वी नो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, है ना, हमें पता है. तो इट इज, नोट डाउन दिस, एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया नाउ. ठीक है, व्हेन वी रिवर्स इट, सो व्हाट वी गेट? 0.0144 into 10000. So what we get? We get 1440 Newton meter square, or we can say Pascal. Okay, we have to calculate force now. It's just Newton. It's just Newton. So this is the formula, but this is the answer. 1440 Newton. But before this, what you should know? You should know this thing. You should know this thing. That is more important. Unit conversion. बेटा unit conversion नहीं आएगा अगर आप ये पूरा फॉर्मूला भी यूज कर लोगे. The answer will be wrong if you don't know this thing. How meter, centimeter, kilometer are linked. कैसे एक दूसरे से linked है. And next is, if you don't know, to get the area, it should be in square root. So you have to multiply these also. So before coming to this point, you should know these 2 steps. ठीक है? Then only you can find the answer. Is it done? Note कर लिए? So मैं 7th question पे आऊं दोबारा. Is it done बेटा?
Yes. So now coming back to the previous question. So question was this. Okay, let me come back to this. Time is over. Yes, beta, I know, but this is Time being is asked. over. ये एक बार पूछा हुआ है. Let me tell. ठीक है. ये रहा B. This is the C जिसकी सबसे कम डेप्थ है, हाइट है, और ये सबसे ज्यादा. So ये था. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग प्रेशर पूछा है. डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? किसका होगा? दैट इज ऑफ सी. हमने उल्टा कर दिया. ठीक है. सी का हाईएस्ट प्रेशर है क्योंकि इसकी डेप्थ सबसे कम है. इसको लिख लो, हाईएस्ट प्रेशर. देन आफ्टर दिस हाईएस्ट प्रेशर इज ऑफ ए. ठीक है. सेकेंड नंबर इज दिस. थर्ड नंबर इज इट्स बी. एंड द लास्ट जिसका सबसे कम प्रेशर होगा दैट इज डी. फोर्थ बिकॉज इफ यू सी इट्स हाइट और इसकी डेप्थ. Excuse me, ma'am. यस बेटा. मैम हाईएस्ट प्रेशर डी में होगा, उसकी डेप्थ ज्यादा है. डेप्थ कैसे होती है बेटा? गहराई कैसे होती है? मैम उसमें जो वाटर लिक्विड फिल्ड है वो ज्यादा अमाउंट में है, और अगर हम डेप्थ चेक करें तो वो ज्यादा है. सी की कम है. मैम सी की लोएस्ट है. इसको चेक करना, सब चेक करना. ठीक है. फिर मुझे कल बताना इस चीज का. आई वॉन्ट टू नो किस किस को फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आया. ठीक है. स्पेशली द डी सेक्शन मिडल रोज बॉयज, फर्स्ट 3 बेंच. ठीक है. आप 5 जो स्टूडेंट्स उनसे तो मैं पक्का पूछूंगी. सो मेक श्योर यू शुड गो थ्रू दिस. ठीक है. क्लियर? चलो. So that's all because your time is over. Okay, students? Okay, students. Bye. Take care.